दोनों में था अलग सा जादू। एक थे लाल और एक थे बापू, दोनों में था अलग सा जादू। दोनों की थी एक ही बोली, थी उनके पीछे हम सबकी टोली। दोनों की थी एक ही बोली, थी उनके पीछे हम सबकी टोली। फिर खुद पे रहा ना किसी को काबू, एक थे लाल और एक थे बापू, दोनों में था अलग सा जादू। लाल जी बोले जय जवान और जय किसान, बापू बोले रघुपति राघव राजा राम। लाल जी बोले जय जवान और जय किसान, बापू बोले रघुपति राघव राजा राम। नारों से उनके देश था हर्षू, एक थे लाल और एक थे बापू, दोनों में था अलग सा जादू। देश का सुख था उनका सपना, कर दिया जीवन न्योछावर अपना। देश का सुख था उनका सपना, कर दिया जीवन न्योछावर अपना। दोनों को याद करे ना अब क्यों, एक थे लाल और एक थे बापू, दोनों में था अलग सा जादू। आओ मिलकर दीप जलाएं, जन्म दिवस दोनों का मनाएं। आओ मिलकर दीप जलाएं, जन्म दिवस दोनों का मनाएं। गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को हमारा शत शत नमन। Hello viewers, on the occasion of Gandhi Jayanti, myself, Sarthak Ravikant Saman, grade 7B, stand before you with great pride and honor to speak a few words about Mahatma Gandhi, who is called as the father of the nation and acted as the father of each and every Indian. Truly, he deserves to be called so because only a father can make such great sacrifices for the welfare of his children. It is indeed rare for someone to create as great an impact on the nation as Mahatma Gandhi did with India. Mahatma Gandhi was born as an ordinary man, but with his extraordinary deeds and thoughts about non-violence, he could bring about many changes in the world. Gandhiji was not a born leader. He was born in a middle-class Indian family, but he had all the traits of a great leader. As Indian lawyer, anti-colonial nationalist, he led a successful campaign for India's independence from British rule, which inspired several rights and freedom movements across the world. He was a simple man living a simple life who practiced values like truth, justice, honesty, non-violence, equality, and unity. By the time Mahatma Gandhi came back to India from South Africa in 1950, there was a great escalation in his reputation due to this non-violent civil protest against racial discrimination against Indians there. On his return to India, Mahatma Gandhi became a part of the Indian National Congress and became a great nationalist who made an immense contribution towards India's independence. Satyagraha, resistance through non-violent civil disobedience, was his greatest weapon. He strongly believed in equal rights and better living conditions for each and every Indian. He valued basic human qualities like truthfulness and honesty. Gandhiji always taught people to forgive the wrongdoers, which is very important in today's world because the present generation believes in an eye for an eye and a tooth for a tooth. If we ardently desire to be true followers of Gandhiji, we can start forgiving people. His empathy for the poor and downtrodden is absolutely unparalleled. Mahatma Gandhi summed up his philosophy of life with words, "My life is my message." Truth was his forte. It is time for us to bring back the values of truth, non-violence, harmony, morality, and simplicity in our life. Simple living and high thinking are two traits that we as students can learn from life of the Mahatma Gandhi. Before independence, Mahatma Gandhi had already dreamt of a self-sufficient India, emphasizing on using
Indian products and goods made in India, telling people to do their work on their own without depending on others. The four fundamental principles of Mahatma Gandhi were Satya, Ahimsa, Sarvodaya, and Satyagraha. Development was a great dream of Mahatma Gandhi. Gandhian principles of non-violence, self-sufficiency, simple living, communal harmony, and truth will help humans to develop. Gandhiji successfully demonstrated to the world that truth and non-violence can be applied not only in individual behavior but in global affairs too. Learning to deal with issues without resorting to violence is something every youngster should learn. Self-control, self-discipline are things that youngsters can learn from Gandhiji. 2nd October is also the birthday of second Prime Minister of India, Shri Lal Bahadur Shastri, who gave us the slogan Jai Jawan, Jai Kisan. He was also a great nationalist. जब तेरा भी गुल मजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े, हिंदू व मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े, फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, मन में थी अहिंसा की लगन तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था
पीछे झुकती थी हिमालय की भी चोटी। दुनिया में तू बेजोड़ था, इंसान बेमिसाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया। तूने वतन के राह में सब कुछ लुटा दिया। मांगा न कोई तख्त न तो ताज भी लिया। अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री चुने गए। मैंने भागलपुर से उन्हें एक पत्र लिखा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्रित्व अमेरिका के राष्ट्रपति पद और रूस के प्रधानमंत्रित्व से ज्यादा मुश्किल काम है। आप सब तरह से उसके योग्य हैं। मुझे अगर चिंता है तो केवल आपके स्वास्थ्य की। आपका शासनकाल सबके लिए सुखकर होगा। मेरा अनुमान सही निकला। उनका राज्यकाल सबके लिए हितकारी सिद्ध हुआ, लेकिन स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। हिंदुस्तान भयानक कठिनाइयों से भरा देश है और यही उसके प्रधानमंत्री के पद को कठिन बना देता है। जो आदमी कम से कम 14 घंटों तक डटकर काम नहीं कर सकता, वह इस देश का नेतृत्व नहीं संभाल सकता। ये बात शास्त्री जी को भी मालूम थी और बीमारी के बाद उन्होंने अपना पोर्टफोलियो कम कर दिया। लेकिन वे देश के प्रधानमंत्री थे और देश में जो कुछ होता उसकी जवाबदेही उन्हीं के सिर पर थी। मैंने उन्हें काम करते हुए देखा है। विनम्रता और सादगी उनके सबसे बड़े गुण थे, लेकिन वे इतने भी सीधे नहीं थे कि लोग उन्हें चकमा दे जाएं, और न ही इतने विनम्र कि कोई भी उन्हें झुका दे। जब असम में असमी और बंगाली भाइयों में दंगा हुआ, पंडित जी ने वहां लाल बहादुर जी को भेजा। उन्होंने वहां कई दिनों तक झगड़ा सुलझाने का प्रयास किया और अंत में झगड़े को निपटाकर ही दिल्ली लौटे। संसद में एक अंग्रेजी समर्थक विधेयक पेश किया गया था। वह घोर रूप से बदनाम विधेयक था और संसद के सदस्य काफी चिढ़े हुए थे। तब सभी सदस्य अपनी भड़ास शास्त्री जी पर निकालते थे, पर वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे। लाल बहादुर जी को जो सेना मिली थी वह ग्लानि के भार से दबी हुई थी। उसके अधिकांश फूल नेफा के मैदान में कट गए थे, किंतु शास्त्री जी ने उस सेना को मांझकर फिर से ताजा और जवान कर दिया। जब अमेरिका ने बाधा डाली कि अन्न हम तुम्हें महीने महीने देंगे, तब उन्होंने देश को बड़ी ही संजीदगी से ये सलाह दी कि पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज्यादा खाओ, सप्ताह में एक शाम उपवास रखो। हमें जीना है तो इज्जत से जिएंगे, वरना भूखे मर जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने अन्न के कोटे को 1 करोड़ टन से बढ़ाकर 1.5 करोड़ टन कर दिया। युद्ध के समय जब पाकिस्तान ने खरोंच मारी, तब देश ने शास्त्री जी में एक युद्ध का नेता प्रकट होता देखा और भारत की जनता निहाल हो गई। जो लोग उन्हें सीधा और कमजोर समझते, उनका भ्रम ज्यादा दिन नहीं टिकता। वे लगभग देहाती आदमी थे, जिस अर्थ में ऋषि देहाती होता है। 30 वर्ष सत्तारूढ़ रहने के उपरांत उन्होंने अपना घर कहीं खड़ा नहीं किया। क्या ऋषि इससे भी बड़ा मनुष्य होता है?